Good morning, students. How are you? I hope all of you are well. Today we will discuss how the data can be represented and visualization. In representation of data, that means that data can be represented in the form of diagrams and charts. There are large number of diagrams are being used to represent the data. The selection of particular diagram depends on the nature of the data, objective of the presentation, and the ability and experience of the person doing this task. Some particular types are bar graph, pie chart, line graph, histogram, and frequency polygon. We will discuss about one by one. The first one is bar graph. As you know, bar graph is a pictorial representation of data having rectangular bars of equal weights. Height of bar depends on the given data, and the lower end of the bar touches the baseline, and height of each bar starts from the 0 units. Every bar depicts only one characteristic of the data, and distance between the bars should be equal. And these bars either may be vertical or horizontal. ठीक है, और बार डायग्राम से क्या करते हैं, जस्ट हम उसकी जो भी गिवन है उसके रिलेशन की हाइट और उस डाटा को हम जल्दी से कंप्रीहेंड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, draw the bar graph. It disclosed in the Union Budget for the 2021 for the percentage share of earning of Indian central government for the year 2019 to 20. Here we have given the income sources and the percentage contribution. In income sources, that means the income sources of government, that is goods and service tax, that is percentage is 18%, union and excise duty 7%, custom 4%, income tax 17%, corporate tax 18%, powering and other liabilities, that is 20%, non-debt capital receipts, that is 6%, and non-tax revenue, that is 10%. And by observing this bar graph, we have to answer the following questions. First is what is the maximum earning of the government? From this table we can also say the maximum earning of the government is, that is borrowing and other liabilities, because their contribution is 20%. And which two sources addited equal amount to money to the government? अब equal amount of money यहाँ पे जो दोनों की परसेंटेज सेम है, that is goods and service tax and corporate tax. ठीक है, ये तो टेबल गिवन थी तो हमने टेबल में से भी देख के बता दिया. और अगर हमारे पास ओनली बार ग्राफ है तो हम बार ग्राफ की हाइट को देखकर बता देंगे. इन क्वेश्चंस के हम रिस्पॉन्स दे देते हैं. एंड नाउ द बार ग्राफ on along x-axis we have to write the income sources, that is goods and service tax, union, excise duty, customs, income tax, corporate law, borrowing and other liabilities, non-debt capitals and non-revenues. ठीक है, अब ये हमने क्या किया, इक्वल गैप पर लिए हैं और along y axis that is the percentage contribution. अब इसको जो बार है that is according to the percentage. You can try it very easily. And as we have already discussed, the maximum earning of the government is borrowing and other liabilities, and the two sources credit equal amount of government to, that is goods and service tax and corporate tax, because their height is the same. Okay, now we have the pie diagram और एंगुलर सर्कुलर डायग्राम्स. इसको हम इसके अंदर हम मेनली क्या करते हैं, क्योंकि सर्कल के अंदर हमारे पास 360 डिग्रीज होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज में हम कन्वर्ट करते हैं. जो कितने सेक्टर्स बनते हैं ये डिपेंड करता है कि हमने किस चीज़ का ग्राफ बनाना है.
ठीक है। अब ईच सेक्टर और रिप्रेजेंट्स ए पर्टिकुलर कंपोनेंट एज ए पार्ट ऑफ ए होल। अब ये हमारे पास क्या शो करता है, रिलेटिव साइजेस शो करता है। अब स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले तो हमें सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है और उसको हमने डिफरेंट नंबर ऑफ सेक्टर्स में रिप्रेजेंट करनी है। उसके कंपोनेंट्स कितने कंपोनेंट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हमें उसको डिवाइड करना है। अब जो वैल्यूज गिवन है उसको परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करनी है और जो परसेंटेज वैल्यू है तो उसको हम कॉरस्पॉन्डिंग डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो हमने कंपोनेंट्स को परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है और परसेंटेज वैल्यू से डिग्री कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और डिग्री कंपोनेंट्स कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि 360 डिग्री का एंगल होता है हमारे पास सर्कल के अंदर और परसेंटेज 100 होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली परसेंटेज डिग्री हमारे पास हो जाएगा 360/100 यानी कि 3.6 डिग्री टू गेट द साइज ऑफ द एंगल। ठीक है, अब एक हम बेस लाइन ले लेते हैं, उसके ऊपर जो फर्स्ट कंपोनेंट का एंगल है वो ड्रॉ करेंगे, उसके बाद न्यू लाइन ड्रॉ करेंगे फॉर द बेस ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट एंगुलर रिप्रेजेंटेशन। और ये प्रोसेस हमारे पास रिपीट हो जाता है जब तक सारे कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट नहीं हो जाते। दैट मीन्स वी हैव गिव्स दिस वन द सेम क्वेश्चन लिया है हमने, तो इसमें इनकम टैक्स और परसेंटेज कंट्रीब्यूशन गिवन है, इसका हमने शेयर ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ 360 डिग्री ये हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास 18% था, तो 18/100 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, सेम इसी तरह से 7% है तो 7/100 इंटू 360। अब 360/100 3.6 होता है, तो इट मीन्स 7 को 3.6 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से जो है ना कस्टम्स का सब कंपोनेंट्स का जो है ना एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं और एंगल्स में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम पाई डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स का हमारे पास इसका 17% था, तो ये हमने गुड्स एंड सर्विस टैक्स 18% है। फिर हमारे पास यूनियन एक्साइज ड्यूटी 7% आ गया, कस्टम्स 4% है, इनकम टैक्स 17% है। ठीक है, जो जितने एंगल्स आए थे उस एंगल के बेस पर हम ये इसको ड्रॉ करते जाते हैं और सेक्टर्स को शो करने के लिए हम डिफरेंट कलर की पेंसिल्स का यूज करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। And now we have the line graph. Line graph that consists of a series of successive data points. यानी कि इसके अंदर ये शो करता है कि वन वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ कैसे रिप्रेजेंटेड है और डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद हम उसको कनेक्ट कर देते हैं टू फॉर्म ए लाइन। जनरली इसके अंदर हम टाइम वेरिएबल टू अदर वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ईच डाटा डिपिक्ट ए डिफरेंट डाटा पॉइंट्स। ठीक है, मोर देन one lines can be plotted on the same graph for the comparison purpose. For example, this one. अब ये जो line graph है that represents the total outstanding debt percentage of GDP of India, which is accumulation of borrowing over the years. यानी कि ईयर के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये लाइन ग्राफ गिवन है। ठीक है, और ये टोटल आउटस्टैंडिंग परसेंटेज ऑफ जीडीपी का डाटा है, यानी कि 2009-10 में इसकी वैल्यू थी 15.52 और 2010-11 में 50.130 थी। ओके, इस तरह से हमें इसको रिप्रेजेंट करना है ईयर के अकॉर्डिंगली। यस, एंड नाउ a higher debt implies the government has a higher loan repayment of obligation over the years. Now histogram जैसे आपको पता है आपने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, there is no gap between the bars। ठीक है, और ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल पर बनता है और जो इसकी हाइट होती है, जो फ्रीक्वेंसीज होती है वो इसके कोरस्पॉन्डिंग एरिया बार वो रिप्रेजेंट करती है और ये कंसेक्यूटिव बार होता है, यानी कि देयर इज नो गैप बिटवीन देम और जो हाइट होती है वो कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है, यानी कि taller the bar means more data falls in that particular range. Consider the frequency distribution representing the new tax rates in the country as proposed in Indian Union Budget of 2020-21। यानी कि हम न्यू टैक्स रेट
जो टैक्सेबल इनकम स्लैब है उसके बेस करेंगे। तो इसमें जो इनकम टैक्स स्लैब्स यानी कि इन रुपीज लैक्स में है 2.525 and new tax rate is 5% and 5 to 5 7.5 that is 10%, 7.5 lakh to 10 lakh that is 15% and 10 to 12.5 that is 20% and 12.5 to 15 that is 25%। अब ये जो डाटा है ये हमारे पास कंटिन्यूअस है, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस नहीं होता तो हम उसको कंटिन्यूअस बनाते हैं, ये ऑलरेडी आप लोग 9th क्लास में सीख चुके हो, ठीक है। और उसके बाद फिर हम ये इसका हिस्टोग्राम की शेप दे देते हैं। अब जो रेक्टेंगुलर बार्स है देयर इज नो गैप बिटवीन देम, ओके। यस, नाउ वी हैव to prepare the histogram for the flowing data. The data is 0 to 5, 7, 5 to 10, 9, 10 to 20, 14, 20 to 40, 12, and 40 to 58, 50 to 80 that is 15। अब इसमें देखने की बात यह है कि जो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल है, क्लास साइज ऑफ ईच इंटरवल, फर्स्ट में हमारे पास 5 है, सेकेंड में 5 है, नेक्स्ट जो थर्ड है उसमें 10 गैप आ रहा है, और नेक्स्ट हमारे पास 20 है, देन 10 एंड देन वी हैव 30। यानी कि जब हमारे पास गैप सेम नहीं होता, क्लास साइज सेम नहीं है, तो उसकी जो है हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, टेबल बना ली पहले, मार्क्स, फ्रीक्वेंसी दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर हमने क्लास साइज निकाल दिया सबका, उसके बाद एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, या लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्लास साइज गिवन है उस क्लास इंटरवल का डिवाइडेड बाय जो मिनिमम क्लास साइज है। सबसे पहले हम मिनिमम क्लास साइज चेक कर लेते हैं, तो मिनिमम क्लास साइज 5 है, और बाय चांस इस इंटरवल का भी क्लास साइज क्या है, 5, तो 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास इज 7, तो इसलिए हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द सेम। अब नेक्स्ट में भी क्या है, 5 है, तो 5 बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब नेक्स्ट के अंदर है जो मिनिमम क्लास साइज है वो तो है 5, और जो क्लास साइज गिवन है इस क्लास इंटरवल का दैट इज 10, it becomes 5 by 10 multiplied by the frequency of this class that is 14, so it becomes 5 by 10 multiplied by 14 that is equal to 7, and then we have the next, for the next class interval 20 to 40, so 5 minimum class size or class size of this class interval that is 20 and frequency that is 12, तो इसको multiply किया we get 3, and then again for the class interval 40 to 50, ठीक है। ये वाला जो काम था ये भी आप 9th क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने क्या करना है, सिंपल सा हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज आई है उसको हम कंसीडर करेंगे अलोंग वाई एक्सिस, प्रपोर्शन ऑफ स्टूडेंट पर मार्क्स इंटरवल, ठीक है, क्योंकि जो मिनिमम क्लास साइज था उस क्लास साइज के अकॉर्डिंगली हमने इनकी हाइट फाइंड की थी, ओके। यस, नाउ वी हैव to draw frequency polygon of the marks obtained by 70 students in the frequency distribution table। अब हमने क्या ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ किसके बीच में होता है, यस, अब ये जो डाटा गिवन है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ इज दैट इज द frequency and the class mark of the class intervals। डिफरेंट क्लास इंटरवल्स का हम क्लास मार्क फाइंड करते हैं, और फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क के बीच में हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमने इसकी क्लास मार्क आपको याद होगा कैसे फाइंड करते हैं, क्लास मार्क फाइंड करने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 10 प्लस 20 बाय 2 इट बिकम्स 30 यानी कि 15, ठीक है। 15 पर इसकी वैल्यू 5 को हमने रिप्रेजेंट किया। दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। और जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड हिस्टोग्राम आता है, सेम ग्राफ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले तो हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे जो भी क्लास इंटरवल गिवन है। इस क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30,
30 to 40, 40 to 50, यहाँ पर विड्थ सेम है, ठीक है। तो विड्थ सेम है तो हम सिंपल सा हिस्टोग्राम बना लेते हैं। ये हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद इनकी जो रेक्टेंगल्स की विड्थ की जो मिड पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट है 4 है, फिर यहाँ पर 5 का मिड पॉइंट, फिर 7 का, फिर ठीक है, इन हम मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाला जो होता है इसको हम जीरो फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड कर देते हैं। ये लाइन जो है ना हमें एक्सटेंड करनी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। एंड नाउ एक चीज़ और भी है कि हम कैसे चॉइस करें वेरियस ग्राफ को, कि किस ग्राफ कैसे बनाना है। तो जैसे बार ग्राफ है, बार ग्राफ इज यूज्ड टू इंडिकेट द कंपैरिजन अमंग डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। और इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो नॉन न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन के साथ हमने किया था। तो हमारे पास ये नॉन न्यूमेरिकल्स होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। और पाई ग्राफ कब यूज करते हैं? फॉर द कंपेयरिंग द पार्ट्स ऑफ ए होल, ठीक है, एंड दे डू नॉट शो एनी चेंजेस ओवर टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग इसके ऊपर कोई चेंज नहीं होता। और जो लाइन ग्राफ होता है, अब इसका हम डिस्प्ले करते हैं दोज डाटा, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड which continuously changes over the period of time through the unbroken lines, ठीक है। एक साइड हमने ईयर्स या जो भी मंथ, जो भी डाटा गिवन है उसके बेस पर हम ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको पॉइंट से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास लाइन ग्राफ बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द डाटा इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स। जब भी हमारे पास गिवन होते हैं तो हम हिस्टोग्राम प्रेफर करते हैं। अच्छा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आर यूज्ड टू अंडरस्टैंड द शेप्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी शेप्स कैसी होंगी डिस्ट्रीब्यूशन की। और जो हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, दैट आर टू डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट द सेम डाटा सेट, ठीक है। दोनों को हम इकट्ठा रिप्रेजेंट करते हैं तो डिफरेंट वेज होते हैं सेम डाटा सेट को रिप्रेजेंट करने के। आई थिंक थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।